Hello dear viewers, today we will discuss next part of the lecture series, types of chemical reactions. In this topic, we have already discussed 3 types of chemical reactions. Total, we have to discuss 5. Among those 5 types, we have already discussed 3 types of chemical reactions, that is combination, decomposition and displacement reactions. Today, we will take out double displacement reaction and oxidation and reduction, also called as redox reactions. So we have number 4 type, that is double displacement reaction. Double displacement reaction. It is number 4. 3 we have already discussed in the previous lecture, and number last is oxidation and reduction. Oxidation and reduction, also called as redox reaction. So, in case of double displacement reaction, these are actually types of substitution reactions. For example, I will provide an example. If we have reactant AB and reactant CD, so in case of double displacement reaction, what happens? I will let you know. If we have reactant AB and CD, these reactants, the atoms in case of these reactants interchange their positions or ionic charge. So we have A, the resulting product formed will be, this A will exchange its position with C. So the resulting compound formed will be AD plus BC. So in this reaction, what happened? That is, this atom in the reactant exchanged its position with this, but the condition is these 2 atoms need to possess same charge. If these 2 possess same charge, then in that case a double displacement reaction will occur. So for instance, we will take an example, that is barium sulfate plus, we have the barium sulfate plus sodium chloride. If we have this compound BaSO4 plus twice NaCl, in this case what will happen? The barium is a metal ion, this sodium is a metal ion. अगर इस रिएक्शन की बात की जाए तो इसमें जो बेरियम के ऊपर चार्ज होगी, that will be 2 positive. You need to remember this, as I have already told you that in case of double displacement reactions, ionic charge transfer or the atoms of the reactants transfer their positions. So we have barium sulfate. This is barium sulfate plus sodium chloride. This barium possesses 2 positive charge because it can lose its outermost 2 electrons. It belongs to group 2nd element, that is alkaline earth metal. And the sodium is from group 1st. So these can have +1 charge, +1 and +2. But we have here twice Na. हमारे पास 2 सोडियम हैं, यहाँ बेरियम एक ही है. So in this case, what will happen? इसका मतलब इसकी चार्ज होगी twice Na positive. 2 पॉजिटिव इसकी भी है, 2 पॉजिटिव इसकी भी है. So these will exchange their positions. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकता है, नेगेटिव को रिप्लेस कर सकता है. You need to remember this. So ये आपने याद रखना है. इस केस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि यहां से भी एक चीज डिस्प्लेस होगी, यहां से भी एक चीज डिस्प्लेस होगी. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
और आयनिक चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की केस में. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी BaCl2 बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्योंकि ये बेरियम चला जाएगा क्लोरीन के पास. जैसे मैंने ऊपर लिखा है आपको A और B, these are two different atoms of the reactant. C and D different atoms of the reactants. तो यहां पर भी वही चीज हो रही है. A अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेता है, ये चला जाता है D के साथ. सेम, इसको आप A मान लो इसको आप C मान लो. तो ये भी अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं. तो आयनिक ट्रांसफर हो जाता है इस रिएक्शन में. सो वी कॉल दिस एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो बनेगा क्या, 2 Na है और यहाँ SO4 बचा. तो यहाँ पे आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा Na2SO4, बिकॉज इस सल्फेट ग्रुप की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव. तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए चार्ज जो सोडियम लाएगा वो भी 2 पॉजिटिव होना चाहिए. जैसे यहाँ पे हम देखेंगे. अब देखो चार्ज की सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं. Ba2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव. यह है ट्वाइस Na पॉजिटिव, ट्वाइस Cl नेगेटिव. इसका मतलब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव. सेम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसमें भी यही केस होगा. Ba2 पॉजिटिव प्लस Cl2 नेगेटिव. एक Cl के पास नेगेटिव चार्ज होती है, 1 नेगेटिव. 2 Cl यहाँ है तो 2 के पास ऑब्वियसली 2 नेगेटिव चार्ज होगी. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जो सोडियम सल्फेट बना Na2, मतलब कि 2 सोडियम, एक की चार्ज होगी प्लस 2 की होगी 2 पॉजिटिव ऑब्वियसली, SO4 2 नेगेटिव. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयनिक चार्ज जो होती है ये ट्रांसफर हो जाती है. लेकिन ये याद रखना है आपने इस रिएक्शन में कि अगर किसी रिएक्टेंट के एटम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो रिप्लेस उसी को करेगा जिसकी चार्ज 2 पॉजिटिव होगी. सो ये आपने याद रखनी है ये बात. सो नेक्स्ट वी विल टेक लास्ट टाइप. We have one more example from this double displacement reaction. If we have silver nitrate AgNO3 plus NaCl. Simply, if we have AgNO3 plus NaCl, that is silver nitrate, this silver nitrate and NaCl. Let's see यहां पे इनकी चार्ज क्या है. Ag की चार्ज होगी पॉजिटिव, NO3 की होगी नेगेटिव. Na की चार्ज है पॉजिटिव, Cl की चार्ज है नेगेटिव. सो क्या होगा यहां पे, ये Ag रिप्लेस करेगा Na को, क्योंकि ये अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgCl, that is silver chloride, प्लस अब बचा आपके पास NaNO3, सोडियम नाइट्रेट. दिस इज सोडियम नाइट्रेट. तो ये बनेगा प्रोडक्ट. तो देखिए आप प्रोडक्ट्स में चार्ज बराबर है. Ag की पॉजिटिव, Cl की नेगेटिव, Na की पॉजिटिव, NO3 की नेगेटिव. So this is one more example of double displacement reaction. Next we have oxidation and reduction. Next we have oxidation and reduction. This reaction is collectively called as redox reaction. तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कॉमनली अगर दोनों एक साथ हो जाए, if these occur oxidation and reduction occur simultaneously, then the reaction is termed as redox reaction. If these two, oxidation and reduction, occur simultaneously, then these are as redox reactions. बहुत important reaction है as far as your higher classes are concerned. So this reaction is used in almost every chapter of inorganic chemistry. Organic में भी यूज होती है, so you need to remember it, understand it very well. So oxidation को define करते हैं first. ये oxidation होता क्या है?
We define oxidation as addition of oxygen. Addition of oxygen. ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन का ऐड होना. फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं एग्जाम्पल, बट दिस डेफिनेशन इज क्लासिकल. दिस इज क्लासिकल डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास. वी है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, वी है चार्ज ट्रांसफर कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट भी होता है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें मैं सामने ही एग्जाम्पल लिखता हूं. अगर हमारे पास है मैग्नीशियम Mg, तो ये मैंने कॉम्बिनेशन में भी एग्जांपल दी थी आपको. इफ वी हैव मैग्नीशियम, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर हम ऐड करेंगे इसको ऑक्सीजन, कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी ट्वाइस MgO. तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन में क्या हुआ? मैग्नीशियम अकेला था, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड देखें यहाँ पे, तो मैग्नीशियम के साथ क्या है? ऑक्सीजन. तो ये जो ऑक्सीजन इसके साथ है, इसमें हम मानते हैं ये चीज कि ऑक्सीजन ऐड हुआ. जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. सिंपल रिएक्शन है, बट द डेफिनेशन इज क्लासिकल, ओल्ड डेफिनेशन. सो नया कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. सो वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट. सो 2-3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के. और या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए. हाइड्रोजन रिमूव कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, वी हैव सोडियम हाइड्राइड, ट्वाइस NaH. ट्वाइस NaH में सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी है. कंपाउंड इज सोडियम हाइड्राइड. यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज सोडियम हाइड्राइड. अगर इस सोडियम हाइड्राइड में हम देखते हैं, सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी है. यहाँ मैग्नीशियम को अकेले देखते थे, ऑक्सीजन ऐड होता था, सो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज फॉर्म्ड देयर. लेकिन यहाँ देखते हैं हम, सोडियम हाइड्राइड के केस में सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी है. अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इसका मतलब हमें मिले ट्वाइस Na प्लस H2. अब ये हाइड्रोजन अलग हो गया. द रिएक्शन इज आल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन. तो रिएक्शन को ऑक्सीडेशन ही माना जाता है. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अब हमारे पास दूसरी जो रिएक्शन है, दैट इज रिडक्शन. रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? रिडक्शन इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ दिस ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का उल्टा जो है, इनवर्स जो है, दैट इज यूजुअली कॉल्ड एज रिडक्शन. इसका मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ करता था, तो रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि ऑक्सीडेशन का उल्टा जो है, दैट इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ करता था, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका उल्टा क्या होगा फिर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बदले यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. So I think you should understand it. Simple सी definition है, simple सा concept है, you need to remember it. Addition of hydrogen और removal of oxygen. तो इसकी reactions यही आप opposite में लिख सकते हो. यही reactions आप यहाँ आप ऐसे लिख लो, H2O twice. और अगर यही reaction हम लिखेंगे, हमारे पास addition of hydrogen की reaction लिखनी है. So if we have calcium Ca twice plus H2, if we have Ca, calcium and H2, अब ये कैल्शियम अकेला था और ऐड क्या हो जाता है? हाइड्रोजन. कंपाउंड क्या बनेगा? CaH2. So इस रिएक्शन में क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये रिएक्शन, दिस इज कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिस्ट भी कहा जाता है इसको. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की देखनी है, यही रिएक्शन लेते हैं हम, ट्वाइस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसमें से हम मैग्नीशियम को अलग करते हैं प्लस ऑक्सीजन को अलग करते हैं. सो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ऐड हुआ और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए.
सो अगर ये दोनों एक साथ हो जाए, रिडक्शन, द रिएक्शन बिकम्स रिडॉक्स। तो अगर दोनों एक साथ हो जाए, the reaction is called as redox. I will provide you a simple example. एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मींस in terms of loss or gain of oxygen and hydrogen and vice versa. Next, I will provide you when both these reactions, that is oxidation and reduction, occur simultaneously. अगर ये दोनों reactions एक साथ हो जाए तो उस टाइम क्या होगा? Let me take copper oxide, CuO. We have copper oxide plus it reacts with hydrogen. Copper oxide plus hydrogen. Or you will take, if copper reacts with water, what will happen? If copper reacts with water, what will happen? Remember, I am going to make you understand what redox reaction means. Redox का मतलब होता है अगर ऑक्सीडेशन अलग से हो जाए तो ऑक्सीडेशन है, अगर रिडक्शन अलग से हो जाए रिडक्शन है, बट अगर साइमल्टेनियसली हो जाए तो रिएक्शन का नाम जो है वो पड़ेगा रिडॉक्स, साइमल्टेनियस अगर हो जाए एक साथ। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं Cu प्लस H2O, तो प्रोडक्ट हमें मिलता है CuO प्लस H2। इसका मतलब ये कॉपर अकेला था, ये कॉपर अकेला था और यहां क्या है इसके साथ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने कहा था क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दूसरा, ये वाटर है, इस वाटर में से ऑक्सीजन निकला, क्या रहा? H2, that is removal of oxygen. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलते हो? रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। सो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, एंड बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो ये रिएक्शन एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। स्टे सेफ।